এই মুহূর্তের বড় খবর, যে খবরের দিকে আমরা চোখ রাখবো, খুন হননি সুশান্ত সিং রাজপুত। এইমসের যে ফরেন্সিক টিমের ইঙ্গিত এমনটাই। পারিপার্শ্বিক ঘটনা বলছে আত্মঘাতী হয়েছেন সুশান্ত। ঝুলন্ত অবস্থায় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে, এমনটাই দাবি এইমসের ফরেন্সিক টিমের। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি খুন করা হয়নি সুশান্ত সিং রাজপুতকে? যে অভিযোগ সুশান্ত সিং রাজপুতের পরিবার বারবার করেছে, সেই জায়গা থেকে এইমসের যে ফরেন্সিক তদন্ত, সেই ফরেন্সিক টিমের ইঙ্গিত কিন্তু যা, তাতে আত্মঘাতী হয়েছেন সুশান্ত, এমনটাই কিন্তু তারা বলতে চাইছেন। আমরা এই বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে জানবো। আমাদের সঙ্গে শঙ্कर आनंद আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন, সরাসরি কথা বলে নেব शंकरेर संगे। शंकर जी, जानना चाहेंगे एम्स के तरफ से सुशांत की मृत्यु के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, एम्स के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश करने के बाद एम्स को ये जानकारी मिली है कि हत्या से जुड़ा हुआ जो मसला है वो ऐसा यहाँ पर सामने नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर अभी तक का जो तफ्तीश है, तो तफ्तीश में अभी तक जो सुसाइड का जो एंगल है, सुसाइड का ही एंगल सामने आ पा रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जो एक रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को दे दी गई है, और सीबीआई जो है इस मामले पर अब किस तरह से रिपोर्ट बाकायदा फाइनल करेगी, किस तरह से इस मामले पर आगे की रिपोर्ट दायर करेगी। लेकिन अभी तक जो एम्स की जो थ्योरी निकल के आ रही है, एम्स के द्वारा जो बनाए गए विशेष मेडिकल बोर्ड की जो थ्योरी सामने आ रही है, उस मामले में साफ पता चल रहा है कि अभी तक ये সূত্র মারফত এইমসের এই তদন্তের ব্যাপারে আমরা জানতে পারছি যে এখনো পর্যন্ত তারা যে বিষয়ে খবরাখবর নিচ্ছিল, যারা যেভাবে তদন্ত চালিয়েছে এইমসের ফরেন্সিক টিম। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামলা কিন্তু ভীষণ জটিল এবং ঘন হয়ে চলেছে, নানান শাখা প্রশাখা বিস্তার করছিল। এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার আসছিল যে এইমস কেন তার রিপোর্ট সাবমিট করছে না, কেন এইমসের সঙ্গে সিবিআই এর মিটিং হচ্ছে না। সেখান থেকে এরকম একটা খবর সূত্র মারফত আসা, যেখানে কিন্তু এইমস দাবি করছেন, এইমস জানাচ্ছেন যে সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মঘাতী হয়েছেন, তার কোনো পয়জনিং মানে কোনো বিষক্রিয়া কিংবা তাকে মেরে ফেলা, মার্ডার, কোনো তার খুন করার সম্ভাবনাটা কিন্তু রুল আউট করছে এইমস। সেখান থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, একটা নতুন মোড় আসতে চলেছে এই ঘটনার। সেখানে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে, প্রথমে যখন বিকাশ সিং এবং আমাদের অপর প্রতিনিধি শঙ্कर आनंद যেটা বললেন যে সোমবার একটি আদালতে পেশি হতে পারে, সেখানে সিবিআই কি বলেন, কি বক্তব্য রাখেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। সৌমাদিত্য ট্রাসের বুলগাড়িতে নির্যাতিতার বাড়িতে নিউজ 18 পৌঁছে গেল এবং অবশেষে চাপের মুখে নির্যাতিতার গ্রামে সংবাদ মাধ্যমকে ঢুকতে দেয় যোগীর পুলিশ। নিউজ 18 এর ক্যামেরার সামনে বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। তাদের অভিযোগ, তাদেরকে হুমকি দিয়েছেন জেলা শাসক, এমনকি নির্যাতিতার পরিবারের ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আমরা সরাসরি এই মুহূর্তে চলে যাব, সুমিত শর্মা আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন হাসরাতের ওই বুলগাড়ি গ্রাম থেকেই, কথা বলে নেব তার সঙ্গে। सुमित जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या बताया गया है पीड़ित के परिवार की तरफ से? जी सौम्यदीप, मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से लगातार 3 दिनों से पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था। उसके बाद जब आज सुबह मीडिया को अंदर जाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग मीडिया के लिए खोले गए हैं। सिर्फ राजनीतिक दल का किसी का भी अभी प्रवेश वर्जित है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जैसे ही हमारी न्यूज़ 18 बंगला की बात जब पीड़ित परिवार से हुई है, तो उन्होंने साफ बताया है किस तरह से जिलाधिकारी ने उनको धमकाया था, दबाव बनाया था, और उनका अभी भी यही आरोप है पूरी तरह से कि जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई। आप हमारे साथ बने रहिए। समय में अपराध के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लोग अभियोजकों के सामने ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दंड दिलाने की चुनौती, इसके लिए आप सभी को विभिन्न विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी रखते हुए सदैव अद्यतन रहना आवश्यक है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। प्रभावी पैरवी से आपराधिक तत्वों में सजा का भय होता है। कानून का यह भय कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है। एक योग्य व दक्ष पुलिस बल के सदस्य के रूप में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सफल प्रशिक्षण के लिए आपको बधाई देता हूं, और आप सबके उज्जवल
एवं मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। আমরা দেখছিলাম সেই ছবি। এর পাশাপাশি যে ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তা হলো হাসরাতের ওই গ্রাম বুলগাড়ি গ্রাম, এবং সেই গ্রামে কিন্তু পৌঁছে যায় নিউজ 18। চাপের মুখে আজ নির্যাতিতার গ্রামে সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশে আর কোনো বাধা দেয়নি পুলিশ। मैं वही कह रहा हूं, जिस तरह से यहाँ स्थानीय अधिकारियों का रवैया था, चाहे वो यहाँ के एसएसपी हो या यहाँ के डीएम हो या यहाँ के अन्य जो अधिकारी हो, सबका जो रवैया था वो आपने देखा है तस्वीरों में। पिछले 2 दिन से लगातार देख रही हैं। जॉइंट जो मजिस्ट्रेट हैं मीना, उन्होंने उनके तस्वीर सामने आई धक्का मुक्की करते हुए टीएमसी सांसदों के साथ में। जो डीएम है वो पीड़ित परिवार को धमकाते हुए सामने आए। तो तमाम ऐसे सवाल थे जो पीड़ित परिवार का पक्ष रखना बहुत जरूरी था, सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी था। लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो सच्चाई सामने नहीं आने देना चाह रहे थे। पता नहीं किस बात का डर उनको था, इसलिए मीडिया की एंट्री पर उन्होंने बैन लगाया हुआ था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कल एक्टिव होते हुए तमाम जो दोषी अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की, उसके बाद में अभी हालांकि अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी आप जो फैसला है अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आखिरकार क्यों डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पूरा जो मामला है वो अब ये जो बड़े अधिकारी हैं वो जमीन पे आ रहे हैं, वो हकीकत जानेंगे। আপনারা দেখছিলেন নিউজ 18 ক্যামেরা পৌঁছে গিয়েছে বুলগাড়ি গ্রামে, এবং সেখানে পরিবারের সঙ্গেও কিন্তু কথা বলেছে, এবং সেখানে বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। তাদের হুমকি দিয়েছেন ডিএম, যে বিষয়টা আগেও গতকালও কিন্তু জানতে পারা যাচ্ছিল। এমনকি ডিএম রীতিমতন লাথি মারে পরিবারের এক সদস্যকে, এই বিষয়টা কিন্তু সামনে এসেছিল। एसआईटी की जांच पूरी चल रही है, तो क्या आप संतुष्ट दिख रही हैं इस पूरे मामले से? अब एसआईटी की टीम तो कल यहाँ पर नहीं आई। अब वो लोगों को तो सही ठीक ठाक से बात कर रहे थे, इन लोगों के बयान ही लिख रहे थे। वो तो जो डीएम का एक वीडियो आया उसमें दिखा रहे हैं कि जो परिवार को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे थे बीच में। तो क्योंकि एसपी पे कार्रवाई हो गई है, पुलिस वालों पे कार्रवाई हो गई, डीएम पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम सर तो आए थे, उन्होंने धमकाया भी था। मामा को मतलब बोल भी रहे थे कि तुम तो संतुष्ट थे, तो अब इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हो बात को। और क्या बोलते हैं, जब तुम आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो आपका मुआवजा मिल जाता। मैंने बोला कि हमें बॉडी भी नहीं दिखाई गई, तो वो बोल रहे थे कि बॉडी के इतने पोस्टमार्टम कभी जानते हो अब क्या होता है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम हो चुका था बॉडी का, वो उसके छिद्र उड़ गए थे, आप नहीं देख पाते उसका चेहरा। ऐसे बोले थे, ऐसे सर फोड़ देते हैं, हथौड़ा मारते हैं, ऐसे यहाँ से गले से ऐसे काट देते हैं, और वो उसके मतलब पूरा अजर पंजर खोल देते हैं बॉडी का, ऐसे बोल रहे थे वो। অভিযোগ কিন্তু একেবারে জেলা শাসকের বিরুদ্ধে উঠছে, এবং আজ নিউজ 18 ক্যামেরার সামনে পরিবারের সদস্যের বক্তব্য আমরা শুনলাম, এবং তিনি বললেন যে শুধুমাত্র হুমকি দেওয়া হয়নি, এমনকি নির্যাতিতার পরিবারের প্রত্যেকের ফোন পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের আরও দাবি, তাদের উপর মামলা তুলতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের কথায় গ্রামবাসীদের একাংশ তাদের উপর চাপ দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। तो ये पूरा जो माहौल था धमकाने का, अब सरकार ने जो है एसआईटी जांच चल रही है, जो पुलिस अधिकारी थे उन पर कार्रवाई कर दी है। पुलिस अधिकारियों पे और मैंने सुना है डीएम एसडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। तो ये लोग तो फिर भी आ सकते हैं यहाँ पे, और दोबारा भी आने का प्रयास करेंगे, फिर से धमका सकते हैं। अभी वो जैसे बोल रहे थे कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आप बयान ना बदलें। बार बार हम पलट गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, केस हार सकते हो आप, ऐसे सब जो बातें बता रहे थे वो लोग। और हमने बोला कि बॉडी को हमें क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने काफी बहाने लगाए, बोला पोस्टमार्टम का मतलब पता है आपको, सिर हाथ हथौड़े से सिर फोड़ देते हैं, पूरा बॉडी के चिथड़े कर देते हैं, आप लोग नहीं देख पाते, 4 दिन तक रोटी नहीं खा पाते। तो मैं यही बोलूंगा कि हमें बेशक 20 दिन तक रोटी नहीं खा पाते, हमें दिखाते तो हम कैसे विश्वास करें। जो बॉडी जलाई हुई है वो हमारी दीदी की है, और इतनी बुरी तरह से बॉडी जलाई है, ले जाके लकड़ियों पे डाल दिया, पेट्रोल छिड़क दी, आग लगा दी। ये कौन से रीति रिवाज में है, कौन सा जुर्म किया है उन्होंने? 2 बार अत्याचार सहा है, एक जब वो खेत में थी, दूसरी बार उन्हें चलाया गया।
পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হচ্ছে বিস্ফোরক অভিযোগ, এবং এর পাশাপাশি গত দুদিন যেভাবে মিডিয়াকে গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি, গ্রামের সিটের তদন্ত শেষ, সেই জন্যই মিডিয়াকে ঢুকতে অনুমতি। Now, since that process is complete or partially complete, depending upon what the SIT thinks, the restrictions on media inside the village have been taken off. There are no more restrictions from the administration side. You are free to basically carry on with your coverage.